In first practical, we have find out network address, network broadcast address, total number of host bits, and number of hosts. And in the question, IP address and network marks were given in practical number 1. Practical number 2 is based on some commands, use of ping command, tracer, trace route, and ARP utilities. So we have not started this practical number 2. We will see it later on. Practical number 3, configure IP static routing. Okay, static routing configuration. 2 routers we have taken and 2 PC. Okay, this we have completed in the previous session. Practical number 3, static routing configuration. These are the commands. Today we will see practical number 4, that is based on configure IP routing using RIP. RIP means routing information protocol. So what is RIP? In RIP, it is a protocol which counts the number of hops. Number of hops means number of routers. RIP is a protocol which counts number of hops, means it counts number of routers to reach to the destination. Suppose sender is a sender and the receiver. The receiver is a destination where the sender wants to send the data. So the sender is sending some messages through a network. That message will travel. That message will take how many routers or hops to reach to the destination. That is RIP, routing information protocol. It counts the number of hops to reach to their destination. Hops means HOPS. Hops means router. First, we will see the step. Okay, then we will we will perform these commands on Cisco Packet Tracer. ये software में करेंगे. 2 routers. We have taken 2 routers, and this is switch. Okay, 2 routers, switch, and PC. Okay, this is a connection we have done. 2 routers, 2 switch, and 2 PC. So the first step is setup for PC1. Click on PC1. This PC1. See the figure. PC1 desktop. Desktop में we will set IP address. So take any IP address. We are taking 192.168.43.1. Okay. Then the default gateway. Default gateway for PC1 is this router, na? Default gateway जो होगा directly connected to PC. So PC1 is connected to, this is router 2 and router 3. Router 2 is default gateway of PC1. The default gateway, set any IP address for default gateway, but you have to remember this default gateway of PC1 is router 2. Okay. So 192.168.43.2 we have taken. Okay, now the configuration of PC1 is done. PC1. Now we will click on PC2. Same steps we have to perform, only there is a change in the IP address. Click PC2, desktop, IP address, take IP address, set any IP address, then default gateway. The default gateway for PC2 default gateway is router 3. For PC2 default gateway is router 3. Okay. So now the configuration of PC1 and PC2 is completed. PC1 and PC2. Now first we will draw this diagram on Cisco Packet Tracer. तो सॉफ्टवेयर में ड्रॉ करेंगे. दूर है पकड़ दूर. Two routers.
This first one is router. Okay. From here, you have to select generic router. It is selected now. You can place one more router. Then two switch. This is switch, second one. Click generic. Again, click on generic. And two PC and devices. First one. Click generic. Again, select it and place. Now do the connection. This first one. Now do the connection. This first one. Automatically choose connection type. Again, I am selecting this first one. Automatically choose connection type. Again, select it. Again. This first wire. Automatically choose connection type. क्या करना है? First we will set the do the configuration of PC0 and PC1. PC0 and PC1. Click on PC0. Desktop. IP configuration. IP address we can take anything here. But for now to explain to you all, ये I'm taking this IP address only. जो यहाँ पे तो कुछ और भी ले सकते हैं. 192.168.43.1. Subnet mask. Can anyone tell what is the subnet mask of this IP address? Okay, first tell me what this IP address belongs to which class? Class A, B, C. Class C, yes, right. This IP address belongs to class C. कैसे पता चला? By looking at the first block, 192. 192. 0 to 127, class A. 128 to 191, class B. 192 to 223, class C. So this IP address belongs to class C. And class C subnet mask is 255 dot 3 times 255 and 0. Now default gateway. Default gateway means where now we are going to set the IP address of router 0 here. Okay. Default gateway means for PC 0, default gateway is router 0. यहाँ पे जो हम लोग सेट करें, this is the IP address of router 0. Okay. You can take anything else also, but for now I am taking this IP address only. 192.168.43.2. This page. 192.168.43.2. Labeling I am doing here just to remember it. 192.168.42.1 ना ये लिए ना 43.1 43.1 43.2. This is labeling ना place note. इसका क्या सेट की 192.168.43.2. Now click on ये selected है ना. Now this labeling यहाँ पे करना है बैक आने के लिए. This first one तो deselect हो गया. अभी deselect the selection remove हो गया. अभी now click on PC1 desktop IP configuration. PC1 का from this PDF I am taking the IP address 192.168.44.1.
this one and this one. 192.168.44.1. सेम दिस IP address belongs to class C. सबनेट मास्क क्या होगा फिर? यही है ना, क्लास C सबनेट मास्क. गेटवे मीन्स PC1 gateway is router 1. PC1 gateway default gateway is router 1 means router 1 IP address यहाँ सेट कर रहे हैं हम लोग. 192.168.44.2. यहाँ में जस्ट आई एम डूइंग द लेबलिंग हियर. ये क्या लिया उन्होंने? 192.168.44.1. ये 192.168.44.2. Configuration is completed for PC0 and PC1. PC0 and PC1. Next step. Router configuration we have to do. Router. First see the command. Setup for router 1. Two routers we have taken. Okay, setup for router 1. Click on router. Router के अंदर एक ऑप्शन है RIP. प्रैक्टिकल कौन सा RIP का है ना, तो कौन सा ऑप्शन लेना है? RIP, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल. ठीक है, क्लिक ऑन राउटर, क्लिक ऑन RIP. वहां पे एक बटन है, क्लिक ऑन ऐड बटन. RIP में ऐड द कनेक्शन सीरीज डोमेन. देन ओके, वी विल डू प्रैक्टिकल. ठीक, क्या करना है? क्लिक ऑन राउटर, क्लिक ऑन राउटर. राउटर में कॉन्फ़िग में कॉन्फ़िगरेशन में ऐड हुई ना, कॉन्फ़िग. देन सेलेक्ट RIP, सेलेक्ट RIP में क्लिक ऑन ऐड बटन. फर्स्ट एंटर द नेटवर्क, देन क्लिक ऑन ऐड बटन. नेटवर्क ऐड करना है राउटर में. ठीक है, तो फर्स्ट नेटवर्क राउटर के लिए कौन सा? ये वाला 192.168. राउटर 0 belongs to which network? It belongs to which network? 192.168.43.1 है इसका IP एड्रेस, राइट? इसका IP एड्रेस क्या है? 192.168.43.2. तो मुझे यहाँ पे नेटवर्क लिखना, नॉट IP एड्रेस. क्या लिखना है? नेटवर्क. So the network is 192.168.43.0 आता है नेटवर्क में लास्ट में. 0. So it belongs to which network? This router 0. 192.168.43.0. नेटवर्क का इंफॉर्मेशन किसमें आ गया? राउटिंग. ये एक टेबल है समझो. राउटर के अंदर एक टेबल है RIP. RIP में कौन सा इंफॉर्मेशन है? नेटवर्क का इंफॉर्मेशन है. ठीक है, नेटवर्क, एक नेटवर्क ऐड हो गया. क्लिक ऑन ऐड. इट इज एडेड हियर नाउ. Now the next step is now add another IP domain of PC2. PC2 का भी डोमेन ऐड करना है इसमें. PC2 का कौन सा नेटवर्क है? 192.168.44.0, राइट? यही है ना? See this? राउटर में मैंने पूरे नेटवर्क का इंफॉर्मेशन, दोनों नेटवर्क का इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दी. क्यों? बिकॉज जब वो ट्रैवल करेगा पैकेट में मैसेज ट्रैवल होगा तो राउटर के पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए कौन से नेटवर्क में पैकेट को फॉरवर्ड करना, वो राउटर मेंटेन करता है. ठीक है, तो हम लोग ने वी हैव एडेड
कौन सा नेटवर्क, दो नेटवर्क प्रेजेंट है, ठीक है। एक 192.168.43.0 और दूसरा है 192.168.44.0, ये वाला नेटवर्क। दोनों ऐड हो गए इन RIP टेबल। नाउ सी, अभी क्या करना है, सीरियल 2/0 पे आ जाओ। सीरियल 2/0 कौन सा कनेक्शन है, सीरियल 2/0? ये जो राउटर जो कनेक्टेड है, राउटर 0 एंड राउटर 1 कनेक्टेड है, ये कौन सा कनेक्शन है? देखो राउटर 0 में RIP में, in router 0 RIP में we have added two networks, ये 43.0 and 44.0. then this connection serial 2/0 दिख रहा है, राउटर 0 राउटर 1 का कनेक्शन कौन सा है, सीरियल 2/0। क्लिक ऑन राउटर 0 serial 2/0। now set the IP एड्रेस, एक IP एड्रेस देना पड़ेगा मुझे कनेक्शन के लिए, ठीक है। we are taking 10.0.0.1, ठीक है। ये ऑन करना है, पोर्ट स्टेटस ऑन करना है, क्लॉक रेट सेट करना है, ठीक है। IP एड्रेस सेट करना है, याद रखो। सबनेट मास्क है, पोर्ट स्टेटस ऑन करना है। क्या स्टेप पे, क्लिक ऑन राउटर 0, सेट IP एड्रेस 10.0.0.1। this IP address belongs to which class? क्लास A। सबनेट मास्क क्या होगा, 255.0.0.0, ठीक है। ये पोर्ट स्टेटस जो है ऑन करो, क्लॉक रेट ले लो कोई भी, आई एम टेकिंग 64। ये क्लॉक रेट सेट हो गया, पोर्ट स्टेटस ऑन हो गया, कितना हो गया, सीरियल 2/0 में। नाउ क्या करना है स्टेप, अभी 10 डॉट, ये जो नेटवर्क है समझ रहे हो, ये लेबलिंग आई एम डूइंग है, 10.0.0.1 ये इसका है, ठीक है। तो ये भी नेटवर्क है एक, ये IP एड्रेस भी नेटवर्क को बिलोंग कर रहा है, तो ऐड इन RIP टेबल, क्लिक ऑन राउटर 0 RIP 10.0.0.0 ऐड हो गया, ठीक है। अभी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप सेम राउटर 1 में करना होगा, क्लिक ऑन राउटर 1 कॉन्फ़िग, ठीक है। सीरियल 2/0 राउटर 1 सीरियल 2/0 है ना ये, ठीक है। पहले IP एड्रेस सेट करो उसका, फास्ट इथरनेट 0/0, सीरियल 2/0 के फास्ट इथरनेट 0/0, सीरीज कनेक्शन राउटर 0 एंड राउटर 1 सीरियल 2/0। तो यहाँ पे सीरियल 2/0 का भी टेकन 10.0.0.1, ये 2 ले सकते हैं, 10.0.0.0.2। क्लिक ऑन राउटर 1 सीरियल 2/0 10.0.0.2। subnet mask, this IP address belongs to which class, class A। 10 means you have to look at first block, okay, 0 to 127 class A, so it belongs to class A and subnet mask for class A is 255.3 times 0, ठीक है। अभी क्या करना है, पोर्ट स्टेटस ऑन करो, क्लॉक रेट ले लो, ठीक है। ये हो गया लिंक, दिख रहा ग्रीन हो गया मीन्स प्रॉपर लिंक, लिंक इज अप नाउ, ग्रीन मीन्स लिंक इज अप नाउ मीन्स प्रॉपर यू हैव कॉन्फिगर्ड।
ठीक है, सिंपल स्टेप है। अभी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? दिस, ये ओपन करो। अभी राउटर 1 RIP, इसके RIP में कुछ ऐड हुआ है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए ना, यहाँ से। राउटर 0 के RIP में क्या क्या ऐड है, कौन सा नेटवर्क, 43.0 वाला, 44.0 एंड 10.0। सेम राउटर 1 में भी करना है। ठीक है, नाउ क्लिक ऑन राउटर 1 RIP। ये RIP का प्रैक्टिकल है ना, तो वी हैव टू ऐड नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क, 192.168.44.0 ऐड हो गया। देन एक और नेटवर्क है 190.168.43.0, 190.168.43.0 and one more network 10.0.0.0। RIP में सब ऐड हो गया। ठीक है, अभी देखो, अभी कम स्टेप्स बाकी है, बस हो गया। ये सीरियल 2/0 है ना, दोनों साइड, ठीक है, राइट है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टार्टिंग से हमने क्या किए, स्टार्टिंग से PC1 PC2 का जैसे नॉर्मल करते हैं, ठीक है, PC1 एंड PC2 का कॉन्फ़िगरेशन। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, राउटर 1 पे हम लोग, दो राउटर है, ठीक है। राउटर 1 के RIP में 3 नेटवर्क ऐड किए हम लोगों ने, 10.0.0.0 और 44.0। 44.0 क्योंकि ये 44 को बिलोंग कर रहा है ना। सी, यहाँ पे अभी देखो, ध्यान से सुनो, दो राउटर है, दो नेटवर्क ऐड कर रहे हैं हम, 10.0.0.0, 44.0। अभी यहाँ देखो, 10.0.0.0 इसलिए क्योंकि ये जो इंटरफेस है यार सीरियल 2/0 का, ये हम लोग 10 में ले रहे। 44.0 44 वाला क्यों ले रहे, 44 क्योंकि सामने वाले का इंफॉर्मेशन है, ठीक है, खुद का नहीं ऐड करेंगे तो चलेगा, ये वाला और सामने वाले नेटवर्क का, ठीक है, ठीक है, आगे फॉरवर्ड करना है ना, तो 10.0.0 और 44.0 ये सामने वाले का नेटवर्क का, ये दो RIP में सेट, हम लोगों ने 3 कर दिए पर 2 ही करना है, ठीक है, 3 करने का नीड नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, RIP में आ जाओ, फर्स्ट राउटर के RIP में ही हम लोग अभी देखो, फिर सीरियल 2/0 में हम लोग, सीरियल 2/0 में क्यों है समझाओ, दो राउटर जो आपस में कनेक्टेड है उसका सीरियल 2/0, ठीक है, इंटरफेस, उसका IP एड्रेस सेट किया हम लोग ने। IP एड्रेस सेट करने के बाद हम लोग को ये करना था, पोर्ट पे क्लिक किए, सेटिंग में सेव करना था, वो सेव नहीं किया हम लोग ने, दिस वन, ये जो राउटर क्लिक करना है सीरियल 2/0, ठीक है, ये हुआ, पोर्ट स्टेटस ऑन हुआ, सेटिंग में जाके, तो मैं अगेन इसको ऑन ऑफ कर देती हूँ, ऑफ ऑन, सेटिंग में NV रैम दिखा, नॉन वोलेटाइल रैम, तो सेव कर देना, ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट स्टेप आ जाओ, अभी स्टेप सिंपल है, याद हो जाएगा। ये कौन सा नेटवर्क, ये कौन सा राउटर है समझो, ये हमारा पहला राउटर है, राउटर 2 रहने दो, इसका नाम राउटर 2 दिया हुआ, तो ये हमारा पहला राउटर है, ठीक है, फर्स्ट राउटर का RIP है, दो नेटवर्क ऐड किए, खुद का नेटवर्क का सीरियल 2/0 का, और सामने वाले नेटवर्क, सामने वाले का नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद सीरियल 2/0 का IP एड्रेस दिए, ठीक है, सीरियल 2/0 का IP एड्रेस ऑन किया, भी किया ना, ये सेटिंग में नॉन वोलेटाइल रैम में सेव किए। देन राउटर 2 मतलब अभी सेटअप फॉर राउटर 2, ये राउटर 3 एक्चुअली, राउटर 2 नहीं है ये, क्या है ये, राउटर 3 है,
ओके, एक सेकेंड ना। 2/0 एंड 3/0, 1 सेकेंड, दो दिया है। तो ये 3/0, 10.0.0/3। हाँ, ये पीडीएफ में याद रखो, यहाँ पे चेंजेस आएगा। ये राउटर 3 है, सेटअप फॉर राउटर 2 हुआ ना, कंफ्यूज नहीं होना है। ये राउटर 1 है, दो राउटर है, एक राउटर 1 है। लेबलिंग पे ध्यान मत दो, ये राउटर 2 है, ठीक है। राउटर 2 में क्या करना है अभी, सेम आरआईपी बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। आरआईपी बटन पे क्लिक करना है, जैसे हम लोग ने किए यहाँ पे। आरआईपी बटन में क्लिक करना है। दो ही नेटवर्क का नीड है, ये नेटवर्क का नीड नहीं है। राउटर 1 है ना, राउटर 1 में दो ही नेटवर्क का नीड है, पर तीन भी तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेटिंग में सीरियल 2/0 ऐड है इसका। 10.0.0 ऑफ, वापस ऑफ, ऑन। सेटिंग में सेव कर दो सब कुछ, नॉन वोलेटाइल रैम में सेव हो गया, ठीक है। अभी स्टेप कंप्लीट हो गया रे, कोई स्टेप नहीं है, पिंग करना है बस। पिंग कैसे करेंगे, पीसी टू, दो पीसी है हमारे पास। कैसे पिंग करना है, क्लिक ऑन पीसी 0, डेस्कटॉप, जिस कमांड प्रॉम्प्ट पे ping command is used to check the connectivity। हाँ, ping command is used to check the connectivity, कनेक्शन हुआ है क्या। तो पीसी 0 पे हम लोग क्या लिखेंगे, 192 डॉट, सामने वाले का आईपी एड्रेस 192.168.44.1। रिक्वेस्ट टाइम आउट। रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया। पैकेट सेंड करके देखते हैं, ये पैकेट, एक पैकेट यहाँ पे पीसी 0 में देखते, पीसी 0 टू राउटर 0 ट्रैवल हो रहा है क्या, पैकेट फेल्ड हो रहा है। पीसी 0 टू राउट पीसी 1, ये भी फेल्ड हो रहा है। सेटअप फॉर पीसी 1, पीसी 2, ये स्विच ग्रीन नहीं हुआ ना हमारा, ये लिंक, ये वाला सेट नहीं हुआ है सीरीज, ये वाला लिंक ऑफ है अभी दोनों साइड का। तो ये सेट करना होगा हम लोग को, इसलिए ट्रैवल नहीं हो रहा है पैकेट, दिस लिंक, ठीक है। एफ ए 0/0 या एफ ए 1/1 है, इसका भी आईपी एड्रेस सेट करना पड़ेगा। एफ ए 0/0 का इधर, और ये कौन सा है, ये भी एफ ए 0/0 है। ये दोनों सेट करना पड़ेगा हम लोग को, ये भी ट्रैवल नहीं हो रहा है। तो देखो सब लिंक अप है, अपने से ग्रीन से पता चल जाएगा कि लिंक अप है, ठीक है। ये वाला देखो स्विच टू जो राउटर है वो लिंक ग्रीन नहीं हुआ, मीन्स हम लोग सेट ही नहीं किया इसका एफ ए 0/0 का। ये देखो ये वाला, ये पॉइंट है एफ ए 0/0। इधर का कौन सा है, ये भी एफ ए 0/0 होगा, ये सेट नहीं हुआ। इसमें इसका लेबलिंग डिफरेंट दिया है, रुको मैं वापस जा रही हूँ। पीसी 1 सेटअप फॉर पीसी 2, दो नेटवर्क ऐड हुआ है आरआईपी में, राउटर 1 में। सीरियल 2/0 हम लोग ने भी ऐड किए, सीरियल 2/0, उसका एक आईपी एड्रेस, सीरियल 3/0 आईपी एड्रेस। तो अगेन मैं एक काम कर रही हूँ, ये जो स्विच है, दूसरा स्विच लेती हूँ मैं, ये क्रॉस का सिंबल,
ये स्विच निकला, ये स्विच निकला, ये स्विच है ना, ये वाला सेकेंड वाला स्विच है। जेनेरिक, टेक जेनेरिक, कनेक्शन करो वहां से।